آج جو خدا نے میرے دل کے اندر، میرے ذہن کے اندر جو آپ کے لیے کلام رکھا ہے، جتنی دیر بھی ہو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 1 گھنٹہ یا گھنٹے سے زیادہ 20-25 منٹ لوں گا. اور جتنی دیر بھی خدا کا کلام ہو، بڑے دھیان سے خدا کے کلام کو سننا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ہم خدا کے کلام کو غور سے نہیں سنتے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو کوئی شخص کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی کو دیکھے گا. اگر ہم کلام پر توجہ نہیں کریں گے، غور سے نہیں سنیں گے اور سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم برکت نہیں پا سکتے. لہذا ہم نے بڑے دھیان سے، بڑے غور سے خدا کے کلام کو سننا ہے. تو میرے ساتھ نکالیں نیا نامہ میں مقدس پطرس کا پہلا خط ہے اور اس کا پہلا باب، ہم اس کی 14ویں آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. نیا نامہ میں مقدس پطرس کا پہلا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی ہم 14ویں آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. بڑے دھیان سے خدا کے کلام کو سنیے گا. لکھا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. یہ جو آیتیں 3 آیات ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھی ہیں، سادہ الفاظ ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. اور بائبل مقدس کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ فرما بردار فرزند ہو کر، فرما بردار فرزند ہو کر، فرزند کا مطلب ہے بیٹا. اور فرما برداری آپ سب جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ فرما بردار ہم نے بیٹے اور بیٹیاں بن کر کیا کرنا ہے؟ اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کا تابع نہیں بننا. پرانی خواہشوں کے ہم نے تابع نہیں بننا. ہم نے خدا کے فرما بردار فرزند بننا ہے اور اپنی پرانی خواہشوں کو ہم نے ترک کرنا ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہوتی ہے. حاملہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں نا. خواہش کیا کرتی ہے؟ حاملہ ہو کر گناہ کو کیا کرتی ہے؟ وہ جنم دیتی ہے. اور جب ہمارے اندر بری خواہشات آئیں گی، جب ہمارے اندر بری خواہشات جنم لیں گی تو گناہ برپا ہوگا. ہماری زندگی کے اندر گناہ آ جائے گا. اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں خدا سے نہیں ملا سکتی. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح ہم نے بھی پاک بننا ہے. اور خدا کی آنکھیں پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اور جب ہمارے اندر گناہ آ جائے گا، جب ہمارے اندر بری خواہشات جنم لے گی اور جب ہمارے اندر بدی آ جائے گی اور خدا کی آنکھیں پاک ہے، وہ ہماری طرف کبھی نگاہ نہیں کرے گا، وہ ہماری طرف کبھی بھی رجوع نہیں کرے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پاک بنے جس طرح ہمارا بلانے والا پاک ہے، ہمارا خداوند پاک ہے. وہ اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو کھڑا کر کے کہتا ہے، فقیر فرشتیوں کو کہتا ہے جو اپنے آپ کو پاک اور پوتر سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں ہے. وہ ان سے کہتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. اور وہ پاک، اس کے اندر نہ کوئی داغ، نہ کوئی جری، نہ کوئی دبا اور نہ کوئی گناہ ہے. لیکن ہم غور کریں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اندر گناہ ہے، اب دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں اور گناہ ہماری زندگی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے 2
की तरफ रजू लाना है और पाक बनना है, क्योंकि पाक दिल खुदा को देखेंगे। और जब हमारे दिल के अंदर गुनाह होगा, जब हम नापाक हो गए, हमारे अंदर ख्वाहिशात, गलत ख्वाहिशात जन्म लेंगी, हमारा दिल नापाक हो जाएगा, हमारी बॉडी नापाक हो जाएगी और खुदा हमारे बदन के अंदर कभी नहीं आएगा। लिखा है ना कि खुदा हाथ की बनाई हुई मूर्तों के अंदर नहीं रहता। खुदा ये जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं ना, खुदा इनके अंदर नहीं रहता। खुदा किसके अंदर रहता है? किसके अंदर रहता है? पाक बदन या दिल के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? दिल के अंदर रहता है। और दिल कैसा दिल होना चाहिए? पाक होना चाहिए। यीशु मसीह क्या है? खुदा क्या है? और जब आपका दिल पाक होगा तो वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और जब हमारे अंदर गुनाह होगा तो क्या यीशु आएगा? जब हमारे अंदर गलत ख्वाहिशात होगी क्या यीशु आएगा? क्या हम जब नई यरूशलेम के अंदर जाएंगे अपने यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे? लिखा ना, क्रंचियों तेरा बाप अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। क्या बात है! वो कितने खुश नसीब लोग हो गए जो यीशु मसीह को रूबरू देखे। लिखा अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन जब हम नई यरूशलेम के अंदर जाएंगे रूबरू देखेंगे। वो कितने मुकद्दस लोग हैं, कितने खुश नसीब लोग हैं जो यीशु मसीह को देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, रूबरू देखेंगे, उसके तख्त के सामने जाएंगे। आज हमें पाक बनने की जरूरत है। और जब गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा ना, तो खुदा हमें अपनी हुजूरी से निकाल देगा। आदम और हवा, खुदा ने उसको जब तख्लीक किया, बनाया, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आदम और हवा पाक के अंदर रहते थे, और लिखा है वो नंगे थे। क्या लिखा है? वो नंगे थे। और लिखा वो एक दूसरे से शर्माते नहीं थे। बाइबल पढ़ते हो नहीं? किन्ने बाइबल पढ़ना जानते थे? किन्ने जानते कि लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि आदम और हवा नंगे थे और वो एक दूसरे से शर्माते नहीं थे। क्यों शर्माते नहीं थे? इसलिए क्योंकि वो पाक थे। उनकी आंखें पाक थी, उनका दिल पाक था, उनका पूरा बदन पाक था। लेकिन जैसे उन्होंने गुनाह किया, खुदा की हुक्मदुली की, तो क्या हुआ? वो उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांपना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे को उन्होंने देखा हम तो नंगे हैं, उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांपा। और मेरे शिशु, जब हम पाक होंगे ना, तो हमें दुनिया के अंदर हर कोई शख्स अच्छा लगेगा। हमारी आंखें अच्छी होंगी, हमारे कान अच्छे होंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातें देखेंगे। आज हमें अपने आप को पाक बनाने की जरूरत है। और जब आप पाक बन जाएंगे तो फिर यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर आएगा। फकीर फरीसी यीशु मसीह को कहते हैं कि तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते, लिहाजा ये क्या है? नापाक है। तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते, ये नापाक है। यीशु मसीह के बड़े खूबसूरत अल्फाज। यीशु मसीह कहता है कि अगर वो हाथ धोकर खाना नहीं खाते तो वो ऐसे नापाक नहीं हो सकते। जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वो इंसान को नापाक करता है। और आगे यीशु मसीह कहता है, अपने शागिर्दों को बताता है कि अंदर से इंसान के क्या निकलता है। अंदर से इंसान के बदी निकलती है, गाली गलौज निकलता है, बदगोई निकलती है, और इंसान के अंदर से बुरी ख्वाहिशात निकलती है, वो इंसान को नापाक करती है। और बाहर से हम हाथ धोकर खाना खा भी ले या ना धोकर खाना खाए, वो हमें नापाक नहीं करता। जो हमारे अंदर है वो अगर बुरी बातें निकलेंगी तो फिर वो हमें नापाक करेंगे। आज हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है। लिखा है कि जो कुछ इंसान के अंदर है वही बाहर आता है। आज एक जगह पर मैं एक पास साहब को विजिट करवा रहा था, तो वो दुआ पर मैसेज सुना रहे थे। वो उसने बड़ा खूबसूरत एक जुमला बताया। वो कहता था कि जिस शख्स के अंदर दुआ है उस शख्स के अंदर खुदा है।
और जिस शख्स के अंदर दुआ नहीं है उस शख्स के अंदर खुदा भी नहीं है। अगर हमारे अंदर खुदा होगा तो फिर अच्छी बातें निकलेंगी, अगर हमारे अंदर भी कलाम होगा तो अच्छी बातें निकलेंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर गुनाह होगा, इब्लीस होगा, तो मेरे सो हमारे अंदर से बुरी बातें निकलेंगी। हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या है, क्या हमारा दिल पाक है, क्या हमें जो है हमने यीशु मसीह को अपने अंदर जगह दी हुई है। यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे के पास खड़ा हुआ खटखटाता है, वो इसी इंतजार में रहता है कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी दरवाजे को खोलेगी और मैं इसके साथ अंदर जाकर मैं खाना खाऊंगा, मैं फेलोशिप करूंगा, मैं इसे बरकत दूंगा, मैं इसे निजात दूंगा। लेकिन हम चाहते नहीं है, हम अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलते, हम यीशु मसीह को अपने दावत नहीं देते, हम क्योंकि हम नापाक है, हम गुनाह के अंदर है। और गुनाह जो है, गुनाह का जायका बहुत मीठा होता है। और मैं एक बात बता दूं, आप छोटा गुनाह करें या बड़ा गुनाह करें, गुनाह गुनाह ही है। शहद के अंदर थोड़ा सा जहर मिला लें तो क्या आप खा लेंगे? खा लोगे? तुसी बोलो, सुते हो? समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही है? बोली जा रही आ रही सारा समझ? शहद के अंदर आप थोड़ा सा जहर मिला लें तो खा लेंगे? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जहर है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह क्या है? गुनाह ही है। तो लिहाजा हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है। हमें छोटे छोटे गुनाहों से बचने की जरूरत है। ये छोटे छोटे गुनाह हमें मसीह से दूर ले जाएंगे। ये छोटे छोटे गुनाह हमारे दिल के अंदर जब ये हम करते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, किला अमीर हो जाएगा, तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा। आज अपने आप को चेक करें। लिखे है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी क्या बनो? पाक बनो। अपने सारे चाल